Right. Thank you so much for your responses. Lovely to see few professionals also in the mix, and of course, always heartening to see parents who joined this meeting today. And as you may have noticed, we will be recording this meeting for our internal purposes. So let's begin. We would like to use all the time that we have today. I'd like to give you a little introduction about Umeed, which is organizing and conducting this session. Umeed is a Mumbai-based NGO that works with children with disabilities and their families, and in fact, with all stakeholders in the disability ecosystem. A unique team within Umeed is the Family Resource Center, and I am part of the Family Resource Center. We are a team of parents, who are sort of um, coming forward to sort of guide and support other parents and other families like ourselves. And one of the areas which we as parents find very challenging is this whole schooling phase of our children with disabilities. We struggle to get them the education we think they deserve. And we are privileged today to have with us Vidhi Center for Legal Policy, which is an independent think tank dedicated to advancing legal research for improved governance. And we are grateful to have speakers from Vidhi who will share their expertise and share with us on the laws and policies that exist which support inclusion in the school. And as we as parents need to understand how we can use them more effectively to advocate for our children. I'll introduce our speakers for today. We have with us Sagrika Parab, who's a research fellow with the Disability Inclusion and Access team at Vidhi. She's a law graduate from National Law School, Bangalore, and her work primarily focuses on disability rights and inclusive education. So, welcome, Sagrika. She is a research fellow with the Disability Inclusion and Access team there. She is a law graduate from National Law University, Lucknow, and has previously worked with a member of parliament as a legislative assistant. So, welcome, both of you. And in a minute, we'll begin our talk with the two speakers here from Vidhi Center for Legal Policy. And as an audience, I would encourage you to actively participate, ask questions. You may put them in the chat box. We'll be monitoring that. And we'll keep some time towards the end as well to for question and answer. So with that, let's begin. So over to you, Sagrika. And Thank you so much, Smita. Thank you for the lovely introduction. Just a quick a couple of words from our end. So, as Smita said, I'm Sagarika and I have my colleague Soumya here with me. We are both research fellows with the Disability Inclusion and Access team at Vidhi Center for Legal Policy. जैसे आप सबको पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन अभी इंडिया में बहुत बड़ा मैंडेट है। तो हम ये वर्कशॉप इसीलिए करना चाहते थे ताकि आप सब पेरेंट्स और प्रैक्टिशनर्स जो हैं आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए ये वर्कशॉप किया जा रहा है। So we'll switch between Hindi and English throughout the workshop. If there is anyone who is not comfortable with either of those languages, then please let us know in the chat and we'll try to accommodate that as much as possible. So yeah, I think we can just begin. Thank you, Smita and the Umeed team for having us here. And yeah, let's get to it. So yeah, today's workshop is going to be on the legal frameworks for supporting inclusive education in India. Primarily the things that we are going to cover in our workshop today is that we are going to look at an overview of the rights कि India का legal framework क्या बोलता है, उसमें inclusive education के क्या-क्या rights है for children with disabilities. We are then going to move to a very important topic which is grievance redressal. अगर आपको या आपके बच्चे को rights deny हो रहे हैं स्कूल से तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कहाँ कहाँ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और उसके मैकेनिज्म्स क्या हैं।
Next, after grievance redressal, we are going to cover early intervention. As we all know, early intervention means कि जब भी आपके child की disability identify हो गई है, now what will you do after that? So some of the things under the law that are there to support you, some of the schemes, some of the guidelines which are there to provide you rights for early intervention, we are going to cover some of those. Uske baad, the next step after early intervention is disability certification. Now we all know that you may be already aware about some of the procedures for disability certification. So we'll only briefly touch upon that. And then lastly, we'll move to reasonable accommodation, जो हमें लगता है is a very very important topic for children with disabilities. कि schools क्या कर सकते हैं inclusive education support करने के लिए, और आप as a parent या as a practitioner कैसे school से ये rights demand कर सकते हैं. So without wasting any more time, before we begin, we wanted to understand कि अभी जो हमारी audience है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल करेंटली कितना है. तो इसके लिए हमने एक पोल डिजाइन किया है. आपको आई थिंक कि वो पोल अभी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा. इफ एवरीवन कैन जस्ट टेक सम टाइम टू आंसर दीज क्वेश्चंस about just your basic knowledge, how much do you know about the rights of children with disabilities, आपकी awareness level medium है या high है, जिससे हम अपना presentation भी आपके लिए tailor कर सकें. We'll take like a couple of minutes for people to respond to this poll. They can't see the poll. I think Neha, the poll should actually just come on your screen, on your Zoom screen, since I've launched the poll already. Smita, can you confirm for me if you can see the poll? Yeah, I can see it. And नेहा, अगर आप फोन पे ज्वाइन कर रहे हैं तो मे बी आप स्वाइप करें, अगर स्क्रीन तो शायद कोई दूसरे उस पे खुला होगा पोल. Natasha, the recording will not be shared with the participants, but at some point we will put it up on Umeed's YouTube. We'll just wait for another 30 seconds, maybe till we reach 30 participants who have answered the poll. Okay, thank you so much everyone. It's actually very interesting to see कि आपने कैसे respond किया है इस poll के लिए. Just to let everyone know about where we are at the beginning of this workshop, and we hope to get everyone to very well versed with all of these laws by the end of the workshop. But we have some basic knowledge of the Rights of Persons with Disabilities Act. We are not very familiar with, we are moderately familiar with early identification and intervention. We are not as familiar with any government programs for early identification. UDID cards के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता है. That's great to know. So we'll also ensure that we don't waste a lot of time on that. And reasonable accommodation is a 50-50, which is again great to know. We will get to it and we will explain that better to you. Like Smita said, अगर आपको कोई questions है तो please chat में लिख दीजिए. We will answer all questions. We've also kept time at the end of the session for your questions. So without wasting any more time, let's actually get to the content of it. So what is inclusive education? जैसे One second, someone is saying, can you like say it in Hindi?
यस, हम ट्राई करेंगे हमारे साइड से कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करें. आई ट्राई टू कीप इट एज मच इन अ लैंग्वेज दैट इज कंफर्टेबल फॉर एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस नो. तो क्या इंक्लूसिव एजुकेशन, ये वर्ड हमने सबने सुना हुआ है. अगर आप किसी 20 साल पहले किसी को पूछते इंडिया में कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की एजुकेशन कैसे हो रही है, मोस्ट पीपल वुड से कि हाँ, उनके लिए अलग स्कूल्स बने हुए हैं, हम हमारे बच्चों को उन अलग स्कूल्स में भेज रहे हैं. बट जैसे जैसे 2016 आया और राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट इंडिया ने पास किया, वैसे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट दी गई चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को. ये राइट है कि हर बच्चा जिसको कोई डिसेबिलिटी है कैन स्टडी इन अ स्कूल विद ऑल अदर चिल्ड्रन. हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, हम उनको अलग स्कूल्स में नहीं रखेंगे. हम ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे स्कूल में जहाँ की सारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज बाकी बच्चों के साथ इक्वली पढ़ पाए. एंड इट्स नॉट जस्ट कि हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को सिर्फ एडमिशन देंगे स्कूल्स में, हम अपना स्कूलिंग का तरीका ऐसा चेंज करेंगे ताकि सारे बच्चे जो जिनके अलग अलग टाइप्स की डिसेबिलिटीज हैं वो भी इक्वली अच्छे से पढ़ पाए. हम एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे. आप पूछ रहे होंगे खुद को कि ये हम सब यहाँ मिले हुए हैं, इतने सारे लोग इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंक्लूजन, कि क्या ऐसा हो जाएगा कि अगर हम बच्चों चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को नॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन देना शुरू कर देंगे, ऐसा क्या उनके लिए इम्प्रूव हो जाएगा. तो उसके लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है. आई होप यू कैन ऑल हियर इट. It's playing. Smita, can you also hear the video? No, Just give, we can see it played. I will get a mute. According to the National Sample Survey, in India, people with disabilities are underrepresented in schooling and further education. Persons with visual disabilities in particular find it difficult to access education in science and mathematics related fields as compared to those without disabilities. We could hear it for Let a us bit. take the example of two students, Ajay, a student with visual disability who uses a screen reader, and his friend Samir, who does not have a visual disability. Due to inaccessibility of the textbook, Ajay navigates a 8th class mathematics chapter on linear equations in this way. 5x equals 25, 2x3 equals 9, 537 2, 610 2, 2 2, yz plus equals minus. Samir, on the other hand, navigates the same chapter in the following manner. Let us take the example of another subject. We find that it becomes difficult for Ajay to navigate a chapter on money and credit in the class 10 economics textbook due to the insertion of a watermark. Heading level 2. What does all this suggest? First, heading level 2, the formal sector still meets only about heading level 2 half of the total credit needs of the heading level 2 rural people. Heading level 2 needs are met from informal sources. Samir, on the other hand, sees this. So I just want all According to of the us to National think Sample Survey, about. in So sorry. I just want all of us to think about this for a bit.
कि अगर हमारी स्कूल में जब भी हम क्लास 7th में थे या क्लास 10th में थे और हमें मैथ्स पढ़ाया जा रहा था, अगर आपकी टीचर ऐसे तरीके में बात करती, हेडिंग लेवल 2x 3 4 इक्वल टू प्लस माइनस, तो क्या हमें कुछ भी समझ आता? ऑब्वियसली नॉट. So it is so important to ensure कि हम सिर्फ बच्चों को एडमिशन ही ना दे स्कूल में, बट उनके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे और उनके लिए ऐसे टेक्स्ट बुक्स क्रिएट करे और ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट करे जिससे वो हर बच्चे के साथ इक्वली पढ़ पाए. So what is inclusive education? It's not just that you give children with disabilities admissions into school. In addition to that, आप ऐसे स्कूल को अडेप्ट करें ताकि वो बच्चा उसकी सारी राइट्स उस स्कूल में मीट कर पाए. So as per the Rights of Persons with Disabilities Act, children with disabilities are categorized into 21 types of disabilities, and the broad categories of these are physical disabilities. जैसे अगर कोई बच्चा हो जिनको व्हीलचेयर यूजर हो, या intellectual disabilities, which can be anything ranging from ASD to some neurological conditions, mental illness, blood disorders, and obviously multiple disabilities. Now, when a child is affected by 40% of or more of any of these disabilities, उनको हम child with benchmark disability बोलते हैं law में, and that child with benchmark disabilities has even additional protections provided to them over any other child with disabilities as well. So to get into what are the laws in India that give children with disabilities rights, as we mentioned, the first and the most important trademark law is the Rights of Persons with Disabilities Act. It says that हर बच्चे को स्कूल में inclusive education मिलनी चाहिए, कि कोई स्कूल किसी भी बच्चे को डिसेबिलिटी होने के कारण एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता है. और अगर स्कूल में कोई बच्चा चला गया है एंड दे हैव अ डिसेबिलिटी, तो ऐसा नहीं है कि स्कूल उनको स्पोर्ट्स से या कोई एक्टिविटीज से या लर्निंग से एक्सक्लूड कर सकता है. तो स्कूल्स, आपके स्कूल्स ये एक्सक्यूज नहीं यूज कर सकते कि वो हमारे पास तो रैंप है ही नहीं, आपका बच्चा कैसे आएगा स्कूल. It is the school's duty to provide that ramp to you. It is the school's duty to ensure that your child is not just getting admission in the school, but after getting admission is able to reach the classroom, is able to sit through the classroom throughout their lesson, and is able to learn exactly what any other child in the classroom is learning. Now, other than the RPWDA, आप सबने Right to Education Act के बारे में सुना ही होगा. The Right to Education Act gives free and compulsory education for all children between 6 to 14 years in India. And the RTE Act now includes children with disabilities as well. The RTE Act also says that जो भी RPWDA में children with disabilities के rights दिए गए हैं, वो सब RTE के अंडर भी माने जाएंगे. तो जैसे अगर आपको बोला गया है कि आपके बच्चे को एडमिशन मिलनी ही चाहिए, योर चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, then even under the RTE Act or RPWDA Act, your child will get cannot be denied admission to a school. Other than these two major laws, इंडिया में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है. ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने इसलिए निकाली है क्योंकि उन्हें अपना अगले 20 साल में क्या गोल्स है एजुकेशन में, वो उन्होंने इस पॉलिसी में लिखे हैं. And one of the most important goals that the NEP talks about is inclusive education. So जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा गया है कि सारे स्कूल्स एक्सेसिबल होने चाहिए, उनमें सारे अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज होने चाहिए, स्पेशल एजुकेटर्स आपको हायर करने चाहिए, आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए टीचर्स को ताकि वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को पढ़ा सके. सो ऑल ऑफ द लॉज इन इंडिया आर अलाइंड to say that inclusive education is a priority for us,
and that there is no way that a child with disability will be discriminated against in any school. I'm so sorry if my voice is breaking. I think it might be a Wi-Fi issue, but please just bear with me. अगर आपको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है तो please let me know on the chat. Now, doing a deep dive in the Rights of Persons with Disabilities Act, ये एक्ट में 2 important sections हैं जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के एजुकेशन पे है. दैट इज सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17. सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट सेज कि आपके बच्चे को हर स्कूल में, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट स्कूल, be it a government school, a private school, a KV, a neighborhood school, a special school, कोई भी स्कूल में आपको आपके बच्चे की एडमिशन करवानी हो तो वो आपका राइट है और आपको कोई मना नहीं कर सकता है. अदर देन दैट RPWDA ऑल्सो सेज कि अगर वो स्कूल में कोई स्पोर्ट्स या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो रही हो तो आपके बच्चे को वो अलग से बिठा के नहीं रख सकते. उनको आके दे हैव टू इंक्लूड all children with disabilities in these sports and recreational activities. Other than this, section 16 says कि आप बस स्कूल का बिल्डिंग बांध के रुक नहीं जा सकते. अगर कोई बच्चा है जिसको जो स्कूल तक पहुंच नहीं पा रहा है बिकॉज दे हैव अ फिजिकल डिसेबिलिटी, उनको व्हीलचेयर एक्सेस की जरूरत है, तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बिल्डिंग को एक्सेसिबल बनाए. इसके अलावा स्कूल की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये जो एक्सप्लिसिटली राइट्स दिए गए हैं बच्चों को, इसके अलावा कोई सपोर्ट चाहिए हो पेरेंट्स को या चिल्ड्रन को, तो वो भी स्कूल्स प्रोवाइड करें. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम लिखने में 20 एक्स्ट्रा मिनट्स चाहिए तो दैट इज द स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड दैट फॉर द चाइल्ड एज वेल. अदर देन दैट, if the child needs transportation facilities, अगर घर से आने जाने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, again that is the school's responsibility to provide transportation facilities for children, and especially for children with benchmark disabilities. जो हमने बोला था 40% या ज्यादा जिनकी डिसेबिलिटी है वो चूज कर सकते हैं कि वो कोई नेबरहुड स्कूल में जाना चाहते हैं या स्पेशल स्कूल में पढ़ना चाहते हैं. Now the other section in the RPWDA, section 17, also talks about what is the government's responsibility. अभी हमने ये पता कर लिया कि स्कूल को क्या क्या करना पड़ता है. इसके अलावा RPWDA गवर्नमेंट पे भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालता है टू एंश्योर कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता रहे. So one of it is that you have to keep conducting surveys. आपको स्कूल में बच्चों के लिए सर्वेस कंडक्ट करते रहने चाहिए सो दैट आपको पता चले कि एक्चुअली बच्चों की नीड्स क्या है. आपको टीचर्स को, एजुकेटर्स को, स्पेशल एजुकेटर्स को ट्रेन करते रहना चाहिए. आपको कम्युनिकेशन के ऐसे मेथड्स यूज करने चाहिए जो हर बच्चे के लिए कन्वीनियंट हो. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ चाइल्ड विद अ हियरिंग इम्पेयरमेंट इन योर क्लास, you should have a special educator in that classroom who is able to use ISL, for example. या फिर if you have a child who has a visual disability in the class, it is the responsibility of the government and the school to provide books in braille या फिर ऐसे कोई फॉर्मेट में जो वो बच्चा जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट हो वो यूज कर सके. Now coming to specifically to private schools, so I know कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं. So you obviously have the question कि क्या हम ये सारी चीजें प्राइवेट स्कूल से भी मांग सकते हैं या ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल से लिमिटेड है. To answer your question in short, all private schools are required to give admission to all children with disabilities. आप अगर आपको आपके चाइल्ड को किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलानी हो तो वो स्कूल आपको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकती है. Other than this, अगर आपको the other way to get admission into private schools is under section 12(1)(c) of the Right to Education Act. Now section 12(1)(c) of the RTE Act says कि जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स होते हैं उनको 25% रिजर्वेशन अपने सीट्स का रखना पड़ता है फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप्स. Now what are children from disadvantaged groups?
These may include children जिनकी income levels low हैं या जो schedule caste या schedule tribes से हैं, and most importantly it also includes children with disabilities. तो जब भी schools 25% reservation करते हैं for in private schools, this reservation also includes seats for children with disabilities. अगर आपके बच्चे को ये 25% रिजर्वेशन में एडमिशन मिल गई है स्कूल में, तो आपको प्राइवेट स्कूल्स की ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती है. एजुकेशन इज फ्री फॉर योर चाइल्ड इन सच स्कूल्स टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसका मतलब है 14 साल तक आपके बच्चे की एजुकेशन फ्री रहेगी. इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत है? यू नीड अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ योर चाइल्ड एंड नो इनकम प्रूफ इज रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज. And how are you able to avail of this? हर स्टेट में इसके अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं. जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र में एक सेंट्रलाइज पोर्टल होता है जो शायद मार्च में खुलता है. You go to the portal on the Ministry of Education website. You register your child saying that my child is a child with disability और मुझे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन चाहिए under the 25% reservation. And then automatically your child gets assigned to a school which has seats open for children with disabilities. Now obviously ये सब लॉ में लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि ये ऐसे का ऐसा लाइफ में होता है सबके लिए. There are some issues that come up at every level. एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो हमने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स फेस करते हैं इज दैट कि ये 25% रिजर्वेशन जो है, this is not just for children with disabilities. So obviously इसमें और भी तरह के disadvantaged groups के children भी included होते हैं, and because of that children with disabilities get left out sometimes from these. The other issue is that a lot of times parents don't even know कि ये आपके right है कि आप demand कर सकते हैं कि आपके बच्चों को private school में भी admission मिले. And that is what we are trying to solve over here कि अगली बार अगर आपको ये avail करना हो, so please try and do it. Please look up the information on the Ministry of Education website और आप आपके बच्चे को register करवा सकते हैं to get admission in a private school. Now the next thing we want to focus on is that other than the RPWDA and RTE and all these laws that we have, there are also some schemes which are useful for children with disabilities. I think someone has asked a question about the website for this portal. At the end, ये workshop के end में हम आपके साथ एक पूरा डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे जहां पे रिसोर्सेज और उनके वेबसाइट्स लिखे हुए होंगे. तो प्लीज डोंट वरी, हम आपके साथ ये सारे रिसोर्सेज इन राइटिंग भी शेयर कर देंगे एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप. Just coming back to the schemes that are applicable to children with disabilities now. One very important scheme is the Samagra Shiksha Abhiyan. ये स्कीम के अंदर स्कूल्स बच्चों के लिए अलाउंसेस लाइक दे कैन गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे को ट्रैवल के लिए या एस्कॉर्ट के लिए पैसे लग रहे हो, the Samagra Shiksha Abhiyan allows for 1,500 rupees per child for 6 months to students with intellectual disabilities. अगर आपके बच्चे को स्कूल में थेरेप्यूटिक सर्विसेज की जरूरत हो तो ये स्कीम के अंदर स्कूल्स 2,000 rupees पर चाइल्ड विद डिसेबिलिटी स्पेंड कर सकते हैं. So what is it that you can do as a parent with this scheme? You can go to your school और आप डिमांड कर सकते हैं आपके स्कूल से कि प्लीज मेरे बच्चे के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दो या मेरे बच्चे के लिए रीडर अलाउंस दे दो, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज देयर अंडर द लॉ दैट द स्कूल कैन क्लेम. गवर्नमेंट स्कूल को पैसे देती है टू बी एबल टू डू दीज थिंग्स फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज. This also includes a stipend for girls with disabilities of up to 2,000 rupees. Other than the Samagra Shiksha Abhiyan, one very important scheme that all parents should know about is the ADIP scheme. The ADIP scheme is applicable for assistive devices. अगर आपके बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है और आपको हियरिंग इम्प्लांट खरीदना हो, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा एक्सपेंस हो सकता है आपके लिए.
So one thing that you can do is apply under the ADIP scheme. You are entitled to get a lot of aids and appliances, जैसे कि accessible mobile phones for children with visually impaired, visual impairments, braille note takers, and a lot of other such assistive devices. Other than this, there is a pre-matric scholarship schemes for children with disabilities. तो अगर आपका बच्चा क्लास 9 या 10 में पढ़ रहा हो in a government school, then they get a maintenance allowance, book grant, and disability allowance. Other than the scholarship scheme, there is a Disha Early Intervention and School Readiness Scheme. This is when you need therapeutic services and other interventions for children with autism, cerebral palsy. ये स्कीम जो है वो हम डिटेल में अर्ली इंटरवेंशन के पार्ट में डिस्कस करेंगे, विद सौम्या विल टेक अप इन सम टाइम. Now, very importantly, there is a Department of Personnel and Training का circular which says कि अगर आप एक government employee है और आप आपके child with disability के primary caregiver है, तो आपको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और आपके जॉब में ट्रांसफर, रूटीन ट्रांसफर्स होते रहते हैं, दे एंड इफ यू हैव अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, you can say that I do not want to be transferred, और फिर गवर्नमेंट आपको exempt कर देगी ट्रांसफर से. Other than this, for health related things, there is something called a Nirmalya Health Insurance Scheme. This is again applicable to persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities. ये 1 lakh rupees तक annually cover करता है for health related needs of children which have these disabilities. Now, the last scheme that we want to cover is a Saksham Scholarship Scheme, which has been introduced by AICTE. अगर कोई बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप चाहिए and they are studying in an institute which has been approved by the AICTE, they receive 50,000 rupees per annum for their higher education. Now that we have finished this one part and I have given you so much information about the rights of children with disabilities और उनके लिए कौन से schemes use होते हैं, I just want to quickly see कि आपको इसमें से कितना retain हो पाया है. So I will just launch one short quiz. 2 question ही है. अगर आप इसमें participate कर सकते हैं and questions की answers लिख सकते हैं, that would be great. We'll just quickly take only a minute to wait for some responses. Yes, and this obviously this quiz is anonymous, तो हम किसी को call out नहीं करेंगे या किसी को specifically नहीं पूछेंगे. Please try and answer these questions so that we also understand कि आप ये retain कर पाए, आपके लिए ये information important थी या नहीं. Okay, I'll just wait for 10 more seconds for people to answer. I think a lot of people have already answered. But अगर आपने answer नहीं किया है, so please take a second to just answer these 2 questions. Okay, great. So, one of the questions was, which of the following is the responsibility of the school under the RPWDA? Almost all of you have gotten this right. That's great to see. Not only do schools have to admit children with disabilities without discrimination, they also have to have an accessible campus and provide reasonable accommodation so that the child can learn with all other children. And the second question was कि RTE Act में private unaided schools को इनमें से कौन सा करना पड़ता है?
they need to, most of you have gotten the correct answer, which is they will need to reserve 25% seats at an entry level for disadvantaged groups. That's great to hear. Next, we'll move on to a very important section of the presentation, which is on grievance redressal. मैंने आपको ये सारे rights के बारे में तो बता दिया, पर अगर आपको ये rights स्कूल डिनाई कर रही है या आपकी स्कूल के हेडमिस्ट्रेस बोल रही है कि नहीं हमें नहीं पता, हम ये सब नहीं कर सकते आपके लिए, so what is it that you can do as a parent to ensure that the rights of your child are met? This section I'm going to just let Soumya take this forward. Thanks, Soumya. Hi everyone, I'm Soumya Jain. I'm also a research fellow with the Disability Inclusion and Access team at Vidhi. अब हम बात करेंगे, जैसे कि सागरिका ने बताया, हमने सारे राइट्स डिस्कस कर लिए हैं, क्या डिफरेंट पॉलिसीज हैं डिस्कस कर लिया है. अब व्हाट कैन वी डू व्हेन दीज राइट्स आर वायलेटेड? हमें किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिला या हमें किसी ने मना कर दिया कि ये स्कीम का बेनिफिट या इस लॉ का बेनिफिट आपको नहीं देंगे, या जो हमें भी अभी इतने सारे राइट्स बताए गए इनमें से कोई राइट देने से मना कर दिया, तो अब हम एज अ पेरेंट, क्योंकि हमें इतने सारे पेरेंट्स ने ज्वाइन किया है तो मैं इसे एड्रेस करना चाहूंगी कि कैसे कर सकते हैं, फिर क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं इस चीज के लिए. I can't. Yeah. तो पहले हम अलग अलग तरह के कंप्लेंट मैकेनिज्म्स के बारे में आज बात करेंगे कि हम किन किन अलग अलग अथॉरिटीज के पास जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. तो सबसे पहले लोकल अथॉरिटीज. लोकल अथॉरिटीज क्या है? जो अथॉरिटी स्कूल को एडमिनिस्टर करती है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोई भी बॉडी जो जिसके अंडर आपका स्कूल, जिसके कंट्रोल में आपका स्कूल आता है, तो वो स्कूल उस डिस्ट्रिक्ट की लोकल अथॉरिटी में से होंगी, तो उनके पास आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं. अगर जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बात करी गई, जिसमें 25% अगर रिजर्वेशन है एंड दैट इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू योर चाइल्ड बिकॉज द स्कूल हैज डिनाइड इट, so you can complain to the local authority. ये राइट टू एजुकेशन एक्ट फ्रेमवर्क में एक तरीके का कंप्लेंट मैकेनिज्म दिया गया है. दूसरा वाला जो कि काफी वाइडली यूज किया जाता है पेरेंट्स के ही द्वारा, वो है नेशनल या स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. तो आपने सुना होगा शायद NCPCR, SCPCR ऐसे बोलते हैं. तो जो कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स होता है, इसको भी RTE के अंदर ऐसा प्रोवाइड किया गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर, कि आपके को चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका सिर्फ एजुकेशन नहीं, हेल्थ, न्यूट्रिशन, किसी भी तरह से अगर बच्चों के जो राइट्स है अगर वो वायलेट हो रहे हैं, तो NCPCR या फिर स्टेट का कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स पे, SCPCR पे कंप्लेंट फाइल की जा सकती है. या कोई पॉलिसी या कोई गाइडलाइन आई है और उसका आपको बेनिफिट, उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है. तो एग्जाम्पल दिया है मैंने स्लाइड में. NCPCR जो है उसका पोर्टल है ई निदान पोर्टल, ई बाल निदान पोर्टल. इसका लिंक हम बाद में आपके साथ शेयर कर देंगे. तो इस पोर्टल में जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. और स्टेट में यहाँ मैंने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया है. आज हमें इस वर्कशॉप में बहुत सारे महाराष्ट्र के लोगों ने ज्वाइन किया. अभी देखा मैंने जब आप लोगों ने अपनी सिटीज लिखी, तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल शायद यूजफुल रहे. महाराष्ट्र आप बस गूगल कीजिए, सर्च कीजिए महाराष्ट्र स्टेट कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, MSCPCR. तो उसकी ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है. फिर ये जो येलो में जो हमने कर रखा है ई कंप्लेंट, इस पे जाएंगे, इस पे दबाएंगे तो ऐसा कंप्लेंट फॉर्म खुल जाएगा. ये कंप्लेंट फॉर्म का आधा ही स्क्रीनशॉट है. इसमें नीचे जाके ऑप्शन आता है अपनी कंप्लेंट लिखने का. आपको अपना नाम लिखना है, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर किस टाइप की आपको इशू है और क्या उसको डिटेल कर सकते हैं आप और सेंड कर सकते हैं. ये महाराष्ट्र में चिराग ऐप, अगर ये ऊपर बारकोड दिख रहा है, चिराग ऐप नाम का भी ऐप है जहाँ पे आप ऐसा कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, अगर आप किसी भी
कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR है आपके स्टेट के, SCPCR पे आप जाके कंप्लेन करेंगे तो वो आपकी कंप्लेन को कंसिडर करेंगे, फिर आगे वो एक्शन ले सकते हैं। अगर आपको उनके लेवल पे वो एक्शन, अगर वो क्वायरी आपका कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुआ है तो वो आपका कंप्लेंट लेके कोर्ट में केस भी फाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि दिल्ली का जो SCPCR है उसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। उसके जैसे उसमें एक ऐसा केस था जहाँ पे किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट था और उसको एडमिशन डिनाई कर दिया। तो DCPCR ने स्कूल को डायरेक्ट किया कि उसको एडमिशन भी दो और उसके लिए स्पेशल एजुकेटर भी होना चाहिए। या कभी अगर डिसेबिलिटी से रिलेटेड भी नहीं है, और भी किसी चीज से भी रिलेटेड है, अगर कोई भी चाइल्ड राइट का वायलेशन है तो आप यहाँ पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर आप इनकी वेबसाइट पे जाके, आप चाहे आंध्र प्रदेश से हैं, आप मध्य प्रदेश से, आप कहीं से भी हैं, आप अपनी उस स्टेट की SCPCR की वेबसाइट पे जाइए, या फिर वहां पे एक फोन नंबर होगा जिसपे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर ऐसा कंप्लेंट की सुविधा होगी तो आप वहां जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरा है अभी हमने दो तरीके के उसके बारे में बात किया, एक है लोकल अथॉरिटीज और NCPCR जो कि उस राइट टू एजुकेशन फ्रेमवर्क के अंडर आते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की। तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सारे जो लोग हैं जिनको डिसेबिलिटी है उनके लिए, उनके कंप्लेंट्स के लिए एक बॉडी होती है, कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये नेशनल लेवल पे होते हैं चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, और स्टेट लेवल पे होते हैं स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर RPWD एक्ट, जो कि अभी सागरिका ने जिनके बारे में बात करी थी, इफ एनी ऑफ दोज राइट्स आर वायलेटेड दैट आर प्रोवाइडेड अंडर द RPWD एक्ट, that or any other rights of persons with disabilities, then you can file a complaint with CCPD और SCPD। तो यहाँ पे अगर आपको SCPD के साथ कंप्लेंट फाइल करनी है तो आपको, जैसे मैंने स्टेट PCR के बारे में बताया था, आपको अपनी स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाना होगा, लिखना पड़ेगा स्टेट, जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, या दिल्ली से हैं तो दिल्ली स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। उनकी वेबसाइट पे जाइए, अगर उस पर कोई नंबर नहीं है, कोई ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करने का तरीका नहीं है, तो उनका ऑफिस दिया होगा तो आपको ऑफिस जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और चीफ कमिश्नर के पास आप कैसे फाइल कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ये जो वेबसाइट लिखी है ccpdcourt.gov.in, आप इस पे जाएंगे, आपको ऐसा ये जो दिख रहा है लॉगिन का पेज, ऐसा लॉगिन का पेज आएगा, इसमें आप लॉगिन करेंगे, फिर आप अपने आपको कंप्लेंट फाइल करने का ऑप्शन हो जाएगा तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब हमने देखा कि कैसे CCPD या SCPD, स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ हम कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब आपको कंप्लेंट फाइल करने में आसानी हो, आपको पता चले कि ऐसी जो मेरे साथ जो इशू है वो किसी और के साथ भी पहले हुआ है क्या, या फिर अगर मैं अपना कंप्लेंट फाइल करूंगी तो मुझे किस टाइप का रिड्रेसल मिल सकता है, किस टाइप की क्या मिल सकता है, मुझे इससे क्या होगा, कैसे रिजॉल्व होगी वो कंप्लेंट। तो उसके लिए DEPWD ने कुछ कंपेंडियम्स बनाए हैं, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने उसमें कोलैबोरेट किया था, कंट्रीब्यूट किया था। तो ये है पाथवेज टू एक्सेस, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पाथवेज टू एक्सेस कंपेंडियम्स हैं, इस बहुत सारे ऐसे डिफरेंट बुकलेट्स हैं। जैसे एक बुकलेट में लिखा है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसेबिलिटी रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो सारे एक कंपेंडियम में है। दूसरे कंपेंडियम में ये जो हमने बात करी कमिश्नर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, इन्होंने जो अलग अलग ऑर्डर्स पास करे हैं उनकी जानकारी है। और फिर बाकी कंपेंडियम्स में जो भी आपको, जैसे कोई नया गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड, या एम्प्लॉयमेंट, या अलग अलग एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन डिफरेंट टॉपिक्स पे जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स आए हैं, उनका भी एक कंपेंडियम बनाया हुआ है। तो अब इन कंपेंडियम को हम कैसे यूज कर सकते हैं,
तो हाउ टू यूज जो ये यहाँ पर है मैं आपको बताती हूँ। आप DPWD की वेबसाइट पर जाइए। DPWD की वेबसाइट पे पब्लिकेशन में जाएंगे, पब्लिकेशन में ई बुक्स पे जाएंगे और ई बुक्स में आपको खुल जाएंगे पाथवेज टू एक्सेस डॉक्यूमेंट। ये आपको मैं बता रही हूँ, पर इसके साथ साथ हम जब एंड में डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे तो हम इनकी लिंक्स भी आपके साथ शेयर कर देंगे जिससे कन्वीनियंट रहे। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट खोल लें, जैसे कि अगर आपको जानना है कि कमिश्नर ने कैसे ऑर्डर्स दिए, कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने क्या आपके इशू पे कोई ऑर्डर दिया है कि नहीं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जब आप ये कंपेंडियम खोलेंगे तो आप कंट्रोल या कमांड प्लस F दबाएंगे, जो हम सर्च करते हैं किसी डॉक्यूमेंट में, किसी PDF में आप सर्च करेंगे और अपना इशू, अपना जैसे आपको लगता है कि स्कूल से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, रीजनेबल अकोमोडेशन से रिलेटेड है, तो आप कंट्रोल F पे ऐसे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर लिखा है स्कूल, स्कूल से मुझे ऐसे 58 एंट्रीज आ गई, तो उसमें मुझे ये वाला केस है कि ये वाले केस में ऐसा है प्रॉब्लम कि किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी, किसी चाइल्ड को, और उसको एडुकेटर की जरूरत थी, तो स्कूल ने मना कर दिया कि स्कूल ने रिमूव कर दिया चाइल्ड को स्कूल से। तो इसमें CCPD ने फिर नीट ऑर्डर दिया कि ऐसे नहीं कर सकते हैं, और उनको जैसे कि सागरिका ने बताया था सेक्शन 16 और 17 जो RPWD है उसके अंडर उनको स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट करना है, और उन्होंने सारे बेनिफिट स्टूडेंट्स को देने हैं जो उनको लॉ में लिखे गए हैं। तो ऐसे इन कंपेंडियम्स में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि रीजनेबल अकोमोडेशन, डिनायल ऑफ एडमिशन, अगर बोले कि किसी स्पेशल स्कूल चले जाओ या स्कूल छोड़ के चले जाओ, या फिर जो असेसमेंट कैंप्स होते हैं डिसेबल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए वो नहीं हो रहे हैं, या उनमें कोई इरेगुलरिटी है, या स्पेशल एजुकेटर नहीं है स्कूल में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल नहीं है, तो ऐसे डिफरेंट केसेस इस कंपेंडियम में कवर करे गए हैं। तो आपको अगर देखना है कि किस टाइप का रिड्रेसल प्रोवाइड किया गया था ऐसे इश्यूज में, तो आप ये कंपेंडियम्स यूज कर सकते हैं अपने राइट्स, अपने चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स के बारे में और अच्छे से जानने के लिए। अब हम क्विज करते हैं, वही 2 क्वेश्चन रहेंगे और हमें नहीं पता चलेगा किसने क्या आंसर लिखा है, तो आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि RPWDA के अंडर अगर आपके राइट्स वायलेट हो तो आप किसके लिए कंप्लेन, किसको कंप्लेन कर सकते हैं? कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, चीफ या स्टेट, रेगुलर टीचर, स्पेशल एजुकेटर या हेड ऑफ स्कूल। दूसरा क्वेश्चन है कि RTE के अंडर अगर राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन से रिलेटेड कोई आपको इशू है, किसको कंप्लेन कर सकते हैं अंडर RTE? हेड ऑफ स्कूल, स्पेशल एजुकेटर, नेशनल स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो जैसे कि अधिकतर लोगों ने 94% लोगों ने सही बोला है कि RPWDA में चीफ या स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को कंप्लेन कर सकते हैं, और RTE के अंडर भी लोगों ने सही बोला है, नेशनल स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो हमने ये 3 ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में आज बात कर ली। लोकल अथॉरिटीज को कर सकते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे, कमिश्नर, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज।
तो इसमें जैसे कि हमने पैटर्न नोटिस किया, हमेशा अधिकतर पेरेंट्स ही ये कंप्लेंट्स फाइल करते हैं, तो आप जरूर अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपना रिड्रेसल पा सकते हैं। अब हम ने जनरली क्या राइट्स होते हैं, क्या मैकेनिज्म्स है, उनके बारे में बात करी थी। अब हम कुछ स्पेसिफिक राइट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ स्पेसिफिक सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। तो आप लोगों में बहुत सारे पेरेंट्स हैं, आप लोगों को पता होगा हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू आइडेंटिफाई डिसेबिलिटी और डेवलपमेंटल डिले इन अ चाइल्ड इन द एज ऑफ बर्थ टू 6 years। मतलब पैदा होने के कुछ सालों बाद बहुत जरूरी होता है कि आपकी कोई डिसेबिलिटी हो, कोई डेवलपमेंटल डिले हो, वो आइडेंटिफाई हो जाए, जिससे जल्दी उसके लिए नेक्स्ट स्टेप्स लिए जा सके। डिसेबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। डेवलपमेंटल डिले क्या होता है? डेवलपमेंटल डिले मतलब अगर किसी एज तक किसी बच्चे को कुछ चीज कर लेनी चाहिए थी पर वो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे किसी एज तक आके चलना या बोलना या कोई हाथ हिलाना या कुछ कर खड़े होना, अगर कुछ उस एज तक कर लेना चाहिए था पर वो डेवलपमेंट उस एज तक नहीं हो पाया, वो डेवलपमेंटल डिले है। तो वो डेवलपमेंटल डिले आगे जाके डिसेबिलिटी में तब्दील हो जाए या फिर वो डेवलपमेंटल डिले जल्दी ही पहले ही ठीक पहले उसके पहले ही उसके लिए कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ये बहुत जरूरी होता है। इसको बोलते हैं जल्दी डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई करने को अर्ली आइडेंटिफिकेशन। आप म्यूट कर सकते हैं खुद को प्रियंका, थैंक यू। और उसके बाद एक बार डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद नेसेसरी सपोर्ट जो चिल्ड्रन को चाहिए, चाइल्ड को चाहिए, उसको अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं। अर्ली इंटरवेंशन के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन स्कूल जाने के पहले ही हो जाए तो और अच्छी बात होती है। बहुत सारी डिसेबिलिटीज दिख नहीं पाती हैं, इनविजिबल डिसेबिलिटीज जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती हैं, तो वो उनका पता लगना जरूरी होता है सही समय पर। अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन सही समय पर हो जाए तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन जल्दी सही समय पे मिल सकता है, सपोर्ट सही टाइम पर मिल सकता है। जो अगर टाइमली सपोर्ट इंटरवेंशन मिलेगा तो बेटर लर्निंग आउटकम्स होंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से वो पढ़ लिख पाएंगे और उनको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बेहतर तरीके से मिल पाएंगी। Now, who's responsible to do early identification? There are multiple stakeholders. ये सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने बच्चे में डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई करे। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, स्कूल में टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट है जो कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है इस काम के लिए। अब राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो आपके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल लेवल पे जो आपकी गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का काम है कि वो हर 5 साल में सर्वे कंडक्ट करे टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, स्पेशली स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज जो होती है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया जैसे जो होते हैं, उनपे उनकी अलग से स्कूल्स की ड्यूटी है कि वो ध्यान दें और ये डिसेबिलिटीज अगर बच्चों में है तो उनका पता लगाया जा सके। और गवर्नमेंट का ये भी काम है कि हर साल सारे बच्चों को एक तरह से स्क्रीन करें, जिससे अगर कोई बच्चे रिस्क पे हैं तो उनका पता लगाया जा सके। इसके लॉ के अलावा कुछ पॉलिसीज हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक प्रोटोकॉल है और एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, एक स्कीम भी है जिसके अंडर आंगनवाड़ी सेंटर और गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों का आइडेंटिफिकेशन होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स कैंप, जो समग्र शिक्षा अभियान जिसके बारे में बात की गई थी, उसके अंडर कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करती है डिसेबिलिटी असेसमेंट के लिए। और प्रशस्त चेकलिस्ट एक प्रोग्राम एडुकेटर्स के जो स्कूल लेवल पे चलाया जाता है, जिसमें स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल, स्पेशल एडुकेटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए डिसेबिलिटीज चिल्ड्रन में। तो ये आपके लिए एज अ पेरेंट जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका फॉर्मल असेसमेंट आपको लगता है आपके बच्चे को शायद डिसेबिलिटी है पर आप फॉर्मल असेसमेंट नहीं करवा पा रहे हैं या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप स्कूल से भी मदद मांग सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो एनसीईआरटी के द्वारा बनाई गई जो है ये प्रशस्त चेकलिस्ट में स्कूल टीचर्स प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें वो साइंस देखते हैं कि कोई बच्चा ज्यादा पास किताब को रख रहा है या फिर कोई बच्चे को अगर बोल रहे हैं तो वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है। ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं जो साइंस किसी डिसेबिलिटी की तरफ इशारा कर सकते हैं। तो उन साइंस को आइडेंटिफाई करना टीचर्स का काम है, डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई करना नहीं, सिर्फ साइंस आइडेंटिफाई करना। जब वो ऐसे साइंस आइडेंटिफाई करते हैं तो प्रशस्त 2 में जो स्पेशल एडुकेटर्स हैं, स्पेशल एडुकेटर फिर उन साइंस को देखकर वो बताते हैं कि बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है या नहीं। इसमें ये क्यों एक अच्छा तरीका है आइडेंटिफिकेशन का, क्योंकि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। टीचर का काम है वो क्लास के सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करे, ना कि सिर्फ उनको जिनको डिसेबिलिटी उनको लगता है हो सकती हो, सबको आइडेंटिफाई करें और सारे बच्चों के लिए चेकलिस्ट करें और उन चेकलिस्ट में फिर जो बच्चे उनको लगता है जिनमें साइंस दिख रहा है फिर उनको आगे रेफर करें स्पेशल एडुकेटर को। और इसमें सिखाया जाता है इस प्रशस्त चेकलिस्ट की ट्रेनिंग में कि लेबल ना करें कि या फिर अपने हिसाब से स्टार्ट ना कर दे कि इसको ये डिसेबिलिटी है, इसको वो डिसेबिलिटी है, तो इसके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये इसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर आपके जो चिल्ड्रन हैं और वो उस स्कूल में अभी ये प्रशस्त ट्रेनिंग नहीं हुई है, प्रशस्त चेकलिस्ट नहीं यूज की जा रही है, तो आप प्रिंसिपल से या टीचर से जाके बोल सकते हैं कि ये आप स्टार्ट कीजिए स्कूल में, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है कि ये सारे स्कूल्स में होना है। तो ये एक सजेशन है जो आप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इंटरवेंशन, दूसरा जो इंटरवेंशन हमने बात करी कि जब एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया तो नेक्स्ट स्टेप है कि इंटरवेंशन हो। अलग तरह का सपोर्ट या थेरेपीज जो प्रोवाइड की जाए जिससे जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको अच्छा क्वेश्चंस विल टेक लेटर। तो अर्ली इंटरवेंशन के कुछ एग्जांपल्स स्क्रीन पर हैं, जैसे थेरेपीज, बिहेवियरल मैनेजमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, काउंसलिंग, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम्स। ये अलग अलग तरीके से इंटरवेंशन सपोर्ट दिया जाता है जल्दी जब कोई डिसेबिलिटी किसी बच्चे में आइडेंटिफाई हो जाती है। ये यूजुअली डेडिकेटेड सेंटर्स होते हैं, इसके एनजीओज होते हैं, स्पेशल स्कूल्स या मेडिकल फैसिलिटीज में ऐसे रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम कुछ हम ऐसे सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट ने वैसे तो ये काफी सारे एनजीओज में ऐसी प्रोवाइड की जाती है, पर गवर्नमेंट के तरफ से भी कुछ कुछ प्रोग्राम्स हैं इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन के लिए। जैसे कि पहला है क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स। तो ये सेंटर्स स्क्रीनिंग, आइडेंटिफिकेशन, थेरेपीज, काउंसलिंग, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में अभी 22 ऐसे सेंटर्स हैं, इनकी लिस्ट बाद में शेयर कर देंगे हम। कैसे आप एनरोल करेंगे इन सेंटर में? आप या अब पता अगर आपके ये सेंटर आपके घर के आसपास है, आपकी डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप वहां जाके एनरोल कर सकते हैं, या फिर अगर उनका ऑनलाइन आपको नंबर अवेलेबल है आप उनको कॉल करके बता सकते हैं। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर। ऐसे ये भी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, इंटरवेंशन, असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरत है, थेरेपीज, काउंसलिंग। ये 269 सेंटर्स है इंडिया में। इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सेंटर आपको आपके नजदीकी आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए। यहाँ पे आपको आपके यहाँ पे जरूरत है आपको आपके आधार कार्ड की, आपके बेसिकली चाइल्ड के आधार कार्ड की और यूडीआईडी की, फिर आप इन सेंटर पे जा सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, बाकी जो 2 सेंटर्स थे ये इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं थेरेपीज जैसे, और लेकिन जो ये वाला डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर तीसरा वाला जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये ट्रीटमेंट पे ज्यादा फोकस करता है। तो ट्रीटमेंट और मेडिकल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। 363 अभी कंट्री में है, लिस्ट हम शेयर कर देंगे। यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, या फिर आप आंगनवाड़ी वर्कर्स के टच में, तो आपको आंगनवाड़ी वर्कर्स भी रेफर कर सकते हैं इसके लिए। आखिरी हम बात करेंगे दिशा सेंटर की। दिशा सेंटर्स होते हैं 10 साल तक के बच्चों के लिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिनको
ऑटिज्म, सेरिब्रल पॉल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इनमें से मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो। तो ये सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए दिशा सेंटर नाम की ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है। इसमें अर्ली इंटरवेंशन, स्कूल रेडीनेस, थेरेपीज, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा कवर किया जाता है। इसको कैसे एनरोल करेंगे आप? इसकी लिस्ट भी है, आप सेंटर जाइए, वहाँ आपका असेसमेंट होगा बच्चे का। आपको डॉक्यूमेंट्स, आप एनरोलमेंट फॉर्म, आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं। इसके बाद एनरोलमेंट हो जाता है। तो ये पहला पार्ट ये हो गया है हमारे। अब हम क्विज करेंगे एक छोटा सा। पहला क्वेश्चन है कि टीचर्स को जब एक बार वो प्रशस्त चेकलिस्ट भर लें जब टीचर्स, तो उनको क्या करना है? स्पेशल एजुकेटर के साथ वो शेयर करना है, पेरेंट्स को बताना है कि उनको क्या मिला है, उन्होंने क्या असेसमेंट किया है उनके चिल्ड्रन के बारे में। डू नॉट सेग्रीगेट स्टूडेंट्स हु थिंक माइट हैव अ डिसेबिलिटी, अलग ना करें बच्चों को। तो एक्चुअली इसका एक पॉइंट मैंने अपने वर्कशॉप में बताना मिस हो गया कि पेरेंट्स का, टीचर्स का एक और काम है कि वो पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें कि वो उनको जो इन्फॉर्मेशन प्रशस्त से मिल रही है। तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। ये तीनों पेरेंट्स के काम है करने के लिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी स्कीम है जो रिहैबिलिटेशन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पॉल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिकली। इसका आंसर अधिकतर लोगों ने सही दिया है, दिशा सेंटर है। दिशा सेंटर पे ये बाकी सेंटर्स पे भी होता है, पर दिशा सेंटर स्पेसिफिकली इन डिसेबिलिटीज के लिए है। अब हम ब्रीफली वी विल डिस्कस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अब सेकंड आइडेंटिफाई कर लिया है, अब दूसरा प्रोसेस स्टेप है कि आप सर्टिफिकेशन हासिल कर पाए। सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है? कोई भी फैसिलिटीज है एट द स्कूल और एट गवर्नमेंट लेवल, व्हाटएवर डिफरेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स देयर आर, sometimes you will need a disability some kind of certification of disability for your children to avail those schemes. तो disability certification आपको डॉक्यूमेंटेशन देता है कि आपको कौन सी डिसेबिलिटी है, कितनी, क्या परसेंट है उसका, क्या नेचर है उसका। तो इसलिए जिससे आप सारे प्रोग्राम, सारे लॉज का बेनिफिट उठा पाए, आपको जरूरी है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन हो। दो तरह के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन इंडिया में होता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो हमने सुना ही होगा, वो बताता है कितनी एक्सटेंट की डिसेबिलिटी है। ये डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटीज इशू करती हैं। यूडीआईडी कार्ड, ये भी आपने सुना होगा। यूडीआईडी कार्ड भी एक पर्सन विद डिसेबिलिटी की गवर्नमेंटल आइडेंटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, और ये डेटाबेस की तरह भी काम करता है। जो सब पर्सन विद डिसेबिलिटीज इंडिया में कितने हैं, कहाँ हैं, उसका पूरा डेटाबेस भी मेंटेन करता है। जो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हैं विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सच एज ऑटिज्म एंड अदर SLDs, तो उनके लिए अब जब वो 5 साल के होते हैं उसके पहले ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले सर्टिफिकेट उनके लिए बनता है। और जब एक बार वो 5 साल के हो जाए उसके बाद वो यूडीआईडी या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले एक टेम्पररी सर्टिफिकेट बन सकता है। तो ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बच्चों के लिए 5 साल से छोटी उम्र के, क्योंकि उनके लिए यूडीआई जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है यूडीआईडी वो नहीं बन सकता, तो एक टेम्पररी कार्ड बन जाता है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले नाम का। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है कि अब इसमें डिफरेंस क्या है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड में? दोनों सेम आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं और दोनों आपको एक ही प्रोसेस से मिल जाते हैं।
और ये कभी हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट की किसी स्कीम के लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत हो। अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है उसने कहा है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसके लिए यूडीआईडी मैंडेटरी हो गया है, तो इसलिए आपको दोनों आप जिससे आप सब चीजों का बेनिफिट उठा पाए, इसलिए जरूरी है कि आप आपके पास दोनों हो। दोनों एक ही प्रोसेस में मिल जाते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यूडीआईडी पोर्टल पे जाके। मैं इसका प्रोसेस बहुत ही ब्रीफली जैसे कि बहुत लोगों ने बताया कि आप इसके प्रोसेस से जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में, तो वी विल जस्ट लाइक वेरी ब्रीफली जस्ट टॉक अबाउट इट। The first thing that you need to do is apply online on the UDIT portal, जिसका ये स्लाइड में दिखाया जा रहा है। swablambancard.gov.in पे जाके वहां पे आप अपना एप्लीकेशन फिल करेंगे। जब आप एप्लीकेशन फिल कर लेंगे फिर उसको बाद आप मेडिकल अथॉरिटी के पास जाएंगे, जो आपके एप्लीकेशन में लिखा होगा उस मेडिकल अथॉरिटी के पास जाके आप वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को असाइन करेंगे जो आपको असेस करेंगे। फिर वो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे एक मेडिकल बोर्ड को। मेडिकल बोर्ड फाइनली डिसाइड करेगा कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं। वो बनेगा तो क्या एक्सटेंट होगा, क्या टाइप होगा, कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी होगा, वो सब बताएगा हॉस्पिटल को, जिस हॉस्पिटल के पास आप गए थे पहले। फिर वो हॉस्पिटल आपके लिए आगे का प्रोसेस करेगा, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करेगा और फिर बाद में आपको एक यूडीआईडी कार्ड भी पोस्ट करेगा। तो ये ब्रीफली हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोसेस क्या है। अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना जरूरी है, ये प्रोसेस स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकती है, पर फंडामेंटल जो स्टेप्स हमने बात करे वो सेम ही रहेंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहीं भी बना हो, इट्स वैलिड अक्रॉस द कंट्री। जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटीज हैं उन्हें 3 महीने में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करना है, कम्युनिकेट करना है अपना रीजन, अगर नहीं कर पाए तो विद इन अ मंथ। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि DEPWD का एक सर्क्यूलर है जिसके अकॉर्डिंग आपके जिस स्कूल में आपके बच्चे एनरोल्ड है उनके हेड ऑफ स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया जाए। तो और वो कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाएं ऐसे जिससे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन फैसिलिटेट हो सके। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जाके उनसे बोल सकते हैं कि अंडर you are under the law, under the policies of DEPWD, you are obligated to facilitate disability certification for the students studying in your school. तो इसके लिए भी एक शॉर्ट क्विज है, सॉरी 2 क्वेश्चन का, सागरे करके। पहला क्वेश्चन है, विच वेबसाइट शुड यू विजिट टू अप्लाई फॉर यूडीआईडी कार्ड? इसका आंसर वेट करते हैं, थोड़े और लोग ज्वाइन कर ले। दूसरा क्वेश्चन है, आप यूडीआईडी कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन का आंसर है swablambancard.gov.in, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे अप्लाई करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे? आपने अप्लाई किया होगा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा, उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप में लिखा होगा कौन से हॉस्पिटल में जाना है, आप उस हॉस्पिटल में जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आप उस हॉस्पिटल में ना जाना चाहे, नियरेस्ट किसी अथॉरिटी के पास अपने जो भी हॉस्पिटल जो नियरेस्ट हो आपके, जो यूडीआईडी कार्ड इशू करते हैं, उनके पास भी जा सकते हैं। तो इसका आंसर ईदर ऑफ द फर्स्ट 2, जो लास्ट आंसर है वो है। एक क्वेश्चन
Soumya has taken you through what early identification and intervention can look like for children with disabilities. अभी इसके बाद क्या होता है? आपके बच्चों का अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया, आपने उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना लिया। ऑब्वियसली अभी आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको उन्हें स्कूल भेजना है। We already spoke about this कि कोई स्कूल आपके बच्चे को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकती है, बट हमने देखा बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं पेरेंट्स से कि स्कूल्स एक्सप्लिसिटली एडमिशन डिनाई नहीं करती है, कि वो सामने से ऐसे नहीं बोलते कि नहीं हम आपके बच्चे को नहीं लेंगे। यूजुअली स्कूल्स आपके लिए वो इतना डिफिकल्ट बना देंगे कि आपको आपके बच्चे को स्कूल से निकालना ही पड़ेगा। बट दिस इज वेयर दिस वर्कशॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपको आपके राइट्स के बारे में पता होगा, उतना आप जाके स्कूल से डिमांड कर सकते हैं कि इंडिया में लॉ के अंडर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमें स्कूल में ये सारी चीजें दे मेरे बच्चे के लिए। One of those things that the school should provide to children with disabilities is an accessible school environment. जो हमने दो बड़े लॉज के बारे में बात की थी, RPWDA राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट एंड द राइट टू एजुकेशन एक्ट, बोथ ऑफ देम से कि हर स्कूल की बिल्डिंग हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। उसका मतलब है कि चाहे वो रैंप हो या फिर टैक्टाइल पेवमेंट्स हो या फिर क्वाइट स्पेस हो किसी बच्चे के लिए जिसको बहुत सारा स्टिम्युलस ना सहन हो रहा हो। So all schools are required to make all different kinds of accessibility measures for children with disabilities. Now accessibility दो तरीके के होते हैं। एक तो जो हम सब सोच सकते हैं फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की, ठीक है मेरे बच्चे को स्टेयर्स क्लाइंब करना नहीं हो रहा है तो हमें रैंप चाहिए, दैट इज अ फिजिकल एक्सेसिबिलिटी इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक एक्सेसिबिलिटी कोड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लॉन्च किया है। ये जो गाइडलाइंस है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जुलाई 2024 में निकाली है, उसमें बहुत डिटेल में स्कूल्स को बताया गया है कि हर टाइप की डिसेबिलिटी के लिए आपको क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे स्कूल की बिल्डिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चाइल्ड को आईडी हो या वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हो तो उनके लिए भी फिजिकल मॉडिफिकेशन स्कूल को बनाने पड़ेंगे, जैसे कि ब्राइट लाइट्स नहीं होने चाहिए, बहुत लाउड एनवायरनमेंट नहीं होने चाहिए, ये सारे भी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। Now, other than physical accessibility, जो हम सब जानते हैं, we all can identify कि physical accessibility क्या होती है। Other than that, one very important aspect of accessibility is called functional accessibility. अभी आप सोचे कि आपके बच्चे के लिए स्कूल ने रैंप बना दिया, वो बच्चा जाके क्लास में बैठ गया, पर क्लास में जो टेक्स्ट बुक यूज हो रही है, अगर वो बच्चा वो टेक्स्ट बुक पढ़ ही नहीं पा रहा है, शायद उसे डिसलेक्सिया हो या शायद उसे विजुअल इम्पेयरमेंट हो, तो फिर वो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा बाकी बच्चों के साथ? Here is where functional accessibility comes in. तो अदर देन फिजिकली जो चेंजेस स्कूल को करने पड़ते हैं, इसके अलावा स्कूल को अपना करिकुलम फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए ताकि ऐसे बच्चों को ज्यादा बर्डन ना पड़े। उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो टीचर है क्लास में वो ISL यूज कर पाए, या फिर कोई उसके अलावा एक स्पेशल एजुकेटर हो जो बच्चे को सपोर्ट कर पाए। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज हो रहा है, जो असेसमेंट्स हो रहे हैं आपके बच्चे के ईयर आफ्टर ईयर, वो सारे एक्सेसिबल होने चाहिए, फिर ही स्कूल बोल सकता है कि हम बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन दे रहे हैं। So in accessibility as a parent आपके ज्यादा responsibilities नहीं है। The only thing that as a parent or caregiver that you should be careful about is you should know कि आपका बच्चा ये सारी चीजें डिमांड कर सकता है स्कूल से, and if the school is being hostile या आपको स्कूल बोल रहा है कि नहीं ये हमारी ड्यूटी नहीं है या ये हम नहीं कर पाएंगे, then you should definitely go ahead and file a complaint in the different grievance redressal mechanisms that we have spoken about. तो क्विकली हम एक्सेसिबिलिटी पे भी एक क्विज कर लेते हैं, इसमें भी सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं।
जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि फिजिकल एक्सेसिबिलिटी के लिए स्कूल्स को क्या क्या करना पड़ता है, क्या स्पेशल एजुकेटर्स फिजिकल एक्सेसिबिलिटी में इंक्लूड होते हैं, क्या बैरियर फ्री बिल्डिंग फिजिकल एक्सेसिबिलिटी में इंक्लूड होता है, थेरेपी सेशंस फिजिकल एक्सेसिबिलिटी में इंक्लूड होते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस। The second question in this is on functional accessibility. तो functional accessibility में क्या क्या include हो सकता है? Accessible textbooks, tactile flooring, assistive technology, या all of the above. So Mohini is also asking, since we have some time, what are the types of flexible curriculum that one can avail of? So for example, अगर आप कोई स्कूल में अगर आपका बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 3rd स्टैंडर्ड में जो उसको बेसिक न्यूमरेसी और लिटरेसी के लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं, वो आप डिमांड कर सकते हैं स्कूल की टीचर से कि वो उनको ज्यादा इंटरैक्टिव वे में पढ़ाए, using blocks or using things that students can touch and feel and learn better अगर वो टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं. These are things that a special educator who's supporting a teacher should be able to do in the classroom. Just to quickly answer the questions in the poll, which of the following is a physical accessibility requirement? Mostly सारे लोगों ने सही आंसर दिया है कि barrier free building with ramps and accessible toilets is what physical accessibility includes. और functional accessibility का क्या मतलब है? Functional accessibility can include all of the above: accessible textbooks, tactile flooring, assistive technology, and let's say assessments which are more easy for different kinds of children with disability. All of these are functional accessibility aspects. Now we come to the last part of our presentation, जो आप बहुत सारे लोगों को इस पे बहुत ज्यादा questions थे on reasonable accommodations. तो अभी हमने जैसे बात की, अगर आपकी बच्ची को स्कूल में एडमिशन मिल गई, उनको आप स्कूल भेज रहे हो रोज, बट शायद आपके बच्चे को एक कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रही है जो ये सारे राइट्स कवर नहीं कर रहे हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके बच्चे को फिजिकल सेंसेशन वो नहीं ले पा रहा है कि अगर कोई दूसरे बच्चे उसको टच करे तो दैट चाइल्ड इज नॉट एबल टू कोप विद इट. नाउ द स्कूल माइट से कि यहाँ आपके एक्ट्स में और लॉज में ऐसा कहीं एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं गया है कि हम इस बच्चे के लिए कुछ प्रोवाइड करें क्योंकि उसको स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम है कि उसको वो टच सेंसिटिव है. इन दिस केस व्हाट यू कैन से is that there is a catch-all provision in the Rights of Persons with Disability Act. Catch-all provision का मतलब है कि अगर कुछ भी explicitly law में भी दिया नहीं गया है, फिर भी आप इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए वो स्पेसिफिक चीज स्कूल से डिमांड कर सकते हैं, as long as वो चीज स्कूल पे अनड्यू मॉनेटरी बर्डन नहीं डाल रही है. तो अगर आप बस स्कूल से ये मांग रहे हैं कि ओके आप मेरे बच्चे को फ्रंट रो पे बिठाया करो ताकि टीचर बस देख सके कि उसको ज्यादा कोई टच नहीं कर रहा है, उसको कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं करा रहा है, ये करने के लिए स्कूल को कोई एडिशनल मॉनेटरी पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज रीजनेबल अकोमोडेशन. ऐसी चीजें जो स्कूल को करनी ही चाहिए टू सपोर्ट डिफरेंट इंडिविजुअल केसेस ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज. In reasonable accommodations, there are lots of things which you can demand. For example, अगर आपका बच्चा कोई असेसमेंट लिख रहा है या एग्जाम लिख रहा है तो उसके लिए स्क्राइब मिलना, उसको कॉम्पेंसेटरी टाइम मिलना, उसको कोई रीडर मिलना एग्जाम के लिए, all of these are things which are called as reasonable accommodations. Now in India, specifically for class 10th and 12th grade board examinations, CBSE ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने बोला है कि हम कौन कौन से रीजनेबल अकोमोडेशंस बच्चों को देंगे. इसमें उन्होंने ये सारी स्क्राइब और कॉम्पेंसेटरी टाइम की प्रोविजंस तो इंक्लूड किए ही है, बट इसके अलावा आपका बच्चा 3rd लैंग्वेज का एग्जेम्पशन ले सकता है. देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग सब्जेक्ट्स
and even the question paper which is printed, या सारे बच्चों को जो printed question paper मिलता है, वो अगर आपका बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो देयर एन ऑप्शन टू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आप सुन सकते हो या कोई जो आपको पढ़ के बता सकता है. सो यस, a school can change the curriculum. A school can change the way in which they take examinations for a child with disability. और आप ये इधर अगर ये स्कूल एग्जाम में हो या बोर्ड एग्जाम में हो, ये दोनों आपके राइट्स हैं एज अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी कि आप डिमांड करें कि मुझे पूरा सिलेबस मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो गिव मी अ मॉडिफाइड सिलेबस, या फिर मैं थर्ड लैंग्वेज नहीं कर पा रहा हूँ तो प्लीज लेट मी अलाउ मी टू टेक अनदर सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ दैट. अगर ये 10th और 12th स्टैंडर्ड के सीबीएसई एग्जामिनेशंस आपको अवेल करने हैं तो आप आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी. पहले तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो बताती है कि आपके बच्चे को XYZ डिसेबिलिटी है. अभी जैसे ही आपने पता कर लिया कि आपके बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटी है, फिर आपको ये सर्कुलर में चेक करना चाहिए कि उस डिसेबिलिटी के लिए सीबीएसई कौन कौन से एग्जामिनेशंस देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डिसलेक्सिया है तो सीबीएसई आपके लिए 3-4 अलग तरीके के एग्जामिनेशन देता है, तो आपको चेक करनी चाहिए कि उसमें से कौन कौन से आपके लिए एप्लीकेबल है. वो करने के बाद आप स्कूल को एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें आप बोलेंगे कि मेरे बच्चे का ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, मेरे बच्चे की ये क्लास में पढ़ रहा है और उसको ये एग्जामिनेशंस लेने हैं. आप वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये एप्लीकेशन के साथ अटैच करें और स्कूल को सबमिट करें. इसके बाद ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 7 दिन के अंदर वो ये एप्लीकेशन सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में सबमिट कर दे और अपना रिकमेंडेशन भी दे दे कि ये बच्चे को ये एग्जामिनेशन मिलने चाहिए कि नहीं. अगर बोर्ड या स्कूल आपके बच्चे को ये रिजेक्ट करता है कि आपको ये एग्जामिनेशंस नहीं मिलेंगे तो उनको आपको राइटिंग में बताना पड़ेगा कि ये क्यों रिजेक्ट हुआ है और आप क्या कर सकते हैं कि क्या मिसिंग था आपके एप्लीकेशन में जिससे आप ये एग्जामिनेशंस ले सकें. Now lastly, this is a question that has come up a lot. हमें ये क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स ने पूछा हुआ है कि ठीक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए रीजनेबल अकोमोडेशंस हो गए या गवर्नमेंट स्कूल में रीजनेबल अकोमोडेशन मिल गए, बट प्राइवेट स्कूल्स स्पेशली बहुत टाइम रीजनेबल अकोमोडेशंस क्लियरली डिनाई कर देते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम क्यों करिकुलम अडेप्ट करें, हम क्यों आपका सिलेबस कम करें. Again, this is very important for parents to know कि ये आपकी राइट है. आप ये स्कूल से डिमांड कर सकते हो कि आप मेरे बच्चे को डिस्क्रिमिनेट मत करो. अगर वो ये पढ़ नहीं पा रहा है सिलेबस तो वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिलेबस चेंज करे, एग्जाम का फॉर्मेट चेंज करे, शायद वो बच्चे को रिकॉर्ड करके आंसर सबमिट करने दे या फिर टीचर से बात करके वो आंसर सबमिट करने दे. All of these are responsibilities of the school and these are your rights जो आप डिमांड कर सकते हैं. Again, like we spoke about कि section 16 जो है RPWDA का वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को एप्लीकेबल नहीं है, वो हर एक स्कूल जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की हुई है इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल्स, वो हर उस स्कूल के लिए भी एप्लीकेबल है. तो अगर आप कोई प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं जिसके पास गवर्नमेंट का रिकग्निशन है, which is almost all private schools that you will go to, that school has to provide reasonable accommodations to your child. Now one very tricky question in this is about shadow teachers. बहुत बार ऐसा हमें समझ में आया है कि स्कूल्स बोलते हैं कि अगर आपके पास शैडो टीचर नहीं है तो आप आपके बच्चे को प्लीज स्कूल मत भेजिए, या अगर आपकी शैडो टीचर एक दिन छुट्टी भी ले रही है तो उस दिन आपका बच्चा भी स्कूल नहीं आ सकता बिकॉज वी कैन नॉट हैंडल हिम और हर अलोन. नाउ दिस इज अ ट्रिकी सिचुएशन बिकॉज लॉ के अंडर एक्सप्लिसिटली ऐसा नहीं बोला गया है कि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शैडो टीचर प्रोवाइड करना. ऑन दी अदर हैंड एक्चुअली लॉ बोलता है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे तो स्कूल की है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां पे बच्चा पढ़ सके, बट बिकॉज
बहुत टाइम्स ऐसे होता है कि स्कूल्स ये एक्सप्लिसिटली डिनाई कर देते हैं. What you should do in that case is as a parent, अगर स्कूल बोल रहा है कि आपको शैडो टीचर के पैसे भरने पड़ेंगे और आपको शैडो टीचर लानी पड़ेगी, then you should again try and speak to the school administration to explain कि हमारी situation ऐसी है, we cannot afford a shadow teacher all the time, and under the law we are not required to provide a shadow teacher for a child. ऐसे कहीं पे भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि पेरेंट्स को पैसे देके शैडो टीचर लानी पड़ेगी. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप स्कूल से रिक्वेस्ट कर रहे हो और वो फिर भी डिनाई कर रहे हैं कि आपको शैडो टीचर के बिना आपका बच्चा नहीं आ सकता है स्कूल, यू शुड डेफिनेटली फाइल अ केस विद द CCPD और SCPD और विद द NCPCR और SCPCR. ये ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करने के बाद आपकी जो राइट है ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, दिस विल द कोर्ट्स विल होपफुली बी एबल टू से कि ये शैडो टीचर देना भी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन ऑर्डर टू फुलफिल योर राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन. Now that we have gone through the part of reasonable accommodation as well, let's do a quick quiz. 2 क्वेश्चन की क्विज, लास्ट क्विज है जो reasonable accommodation पे है. इस पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि reasonable accommodation का मतलब क्या क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है. स्कूल्स को बैरियर फ्री बनाना, स्कूल्स को चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को स्पेशल स्कूल्स भेजना, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को फ्री एजुकेशन देना, या फिर स्कूल की प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई करना ताकि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पढ़ पाए. इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि RPWDA के अंडर कौन से स्कूल्स को रीजनेबल अकोमोडेशन देने पड़ते हैं. सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को, सिर्फ स्पेशल स्कूल्स को, सिर्फ केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय को, या हर ऐसे स्कूल को जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है. As we are answering this quiz, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे questions भी आए हैं chat में. So Soumya and I will just take another 5 minutes of your time to answer these questions quickly. जितने हम टाइप करके रिस्पॉन्ड कर पाए हमने वो रिस्पॉन्ड कर दिए हैं. But other than that, we quickly try and answer those questions as well. Just to quickly tell you the answers of this quiz. कि रीजनेबल अकोमोडेशन का क्या मीनिंग है. रीजनेबल अकोमोडेशन का मीनिंग है मॉडिफाइंग एंड एडजस्टिंग स्कूल प्रैक्टिसेस टू मीट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज. एंड RPWD के अंडर कौन से स्कूल्स को रीजनेबल अकोमोडेशन देना पड़ता है. हर तरीके के स्कूल को रीजनेबल अकोमोडेशन देने पड़ते हैं. Okay, so we quickly take some time to answer these questions. I think let's start. Soumya, let's start with Some of the questions have been answered. yes, some of the questions have been answered. I'm looking at Pallavi Singh's question. Is it a mandate to have special educator in schools under any of these acts? Yes, Pallavi, that's a great question. Right to Education Act जो है वो mandate करता है कि हर स्कूल को, even private schools, need to meet a minimum ratio of students to special educators, students with disabilities to special educators. This ratio is 1:10 for elementary classes, which is till class 5. तो अगर class 5 तक अगर एक क्लास में 10 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हो, उनके लिए एटलीस्ट एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए. For secondary classes, this becomes 15:1. हर 15 बच्चों के लिए एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए. Mohini has asked, what are the types of flexible curriculum that one can avail of? Flexible curriculum can mean teaching and learning materials जिसको आप टच और फील करके समझ पाए. अगर आप वीडियो से बेहतर समझते हैं तो वीडियो से आप सीख पाए. अगर आप लिख के या ड्रॉ करके बेहतर समझते हैं तो आप वैसे तरीके का लर्निंग आपको मिले. So these are all the types of flexible curriculum that one can avail of.
Railina Dias is saying a new tactic is in schools is that we will not promote the child. You can repeat the class or change the school. Railene, this is a grave injustice that the school is doing to you, and we would highly recommend that you file a complaint. This is very explicitly not allowed. This amounts to discrimination against your child. If there is a case, please try to get it in writing from the school कि वो ऐसा बोल रहे. Send them an email. Ask them कि please मुझे reason बताओ कि आप मेरे बच्चे को promote क्यों नहीं कर रहे हो. As soon as they give it to you in writing, वो email पे अगर आपको एक बार भी बोल दे कि आपके बच्चे को disability है और हम उनके लिए उनको promote नहीं कर पा रहे हैं, immediately file a complaint. Your complaint will be addressed in a very short timeline. Please take advantage of that. Mandate to have special educators, we've already answered. Under CCE, can we demand a different question paper? So in 10th and 12th grade examinations under CBSE, yes, you can demand a different question paper. All you have to do is जब भी आप आपकी application school को submit करते हो, तभी उसमें आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे ये तरीके के reasonable accommodations चाहिए, including that मुझे physical printed question paper नहीं चाहिए, अलग तरीके का question paper चाहिए. Similarly for less syllabus as well. Okay, scribe means writer, yes. Our school makes parents sign conditional admission. Child will only be allowed with shadow teacher and which is paid by parents. Neha, I would highly suggest please do not sign any conditional admission like this. Again, like we said, take it in writing from the school. अगर वो आपको ऐसे कुछ बोल रहे हैं कि only when you pay for a shadow teacher will be allowed, please get it in writing and submit that as evidence when you're filing a complaint. गवर्नमेंट सर्वेंट है और 3 year ट्रांसफर होता है तो क्या करे? वी स्टॉप ट्रांसफर एंड गिव चाइल्ड proper city for child education and therapy. I'm sorry, I don't know the name of the person who asked this, but again, there is a very explicit government circular that says कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो और आपका चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है जो कोई सिटी में स्कूल में जा रहा है, you can say कि मुझे ट्रांसफर्स नहीं चाहिए and you will be exempt from those transfers. So please know about your right and go and demand these rights to the correct authority. I would just like to add one thing. इसका एक similar CCPD के पास केस भी है जहां ऐसा हुआ था, जहां ट्रांसफर जबरदस्ती हो रहा था बोलने के बाद भी. तो ये कंपेंडियम में आपको मिल जाएगा और इस केस की लिंक हम आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं. जो सौम्या ने पाथवेज टू एक्सेस कंपेंडियम के बारे में बात की थी, प्लीज गो एंड रेफर टू दैट. आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे ट्रांसफर्स कोर्ट्स ने बोला है कि ट्रांसफर्स नहीं किए जाएंगे. Now lastly, I think we'll just take 3 questions from Pratik, Ashutosh and Sanket who have raised their hands. Sanket, would you like to go ahead? Hi, yeah. So I think one question was that what are the timelines, like जब हम एक complaint raise करते हैं, what are the timelines जिसमें is necessary की response है, because वो admission process होता है and all of those things. Also, are there similar laws for colleges as well? Please come. आपके वैसे तो ये टाइमलाइंस 1 महीने का टाइमलाइन होता है. जब आप वो कंप्लेंट फाइल करते हैं तो आपको रिस्पांस मिलने का, पर ये अडयर नहीं करते हैं बहुत, क्योंकि जैसे बहुत सारे स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं वो उतने एक्टिव नहीं है. जैसे दिल्ली का एक टाइम पे काफी एक्टिव था, नागालैंड का. आप किस स्टेट से हैं? महाराष्ट्र से हैं. आप पता कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस होंगे तो मे भी हो सकता है आपके केस को आते आते महीने या फिर साल लग जाए, पर नॉर्मली लॉ में मैंडेट 1 महीने का होता है.
And Sanket had also asked कि क्या आप ये हायर एजुकेशन के लिए भी डिमांड कर सकते हैं. सो हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन डिनाई कर रहा हो, देन यस, you can definitely file a complaint and demand for that. But free education is provided to children with disabilities only till 14 years of age. So in higher education institutes there is no reservation कि आपको free education मिले, but admission आपको जरूर मिलनी चाहिए. Also, this प्रतीक, oh sorry, yes sir. yeah, the scribe has to be provided by the school, right? Like Yes, we scribe has to be provided and paid for by the school. Great. Prateek, would you like to quickly go ahead? Hi, Prateek here from Roshni Action for Impact Foundation. आपने जो 25% रिजर्वेशन वाला पॉइंट बोला था ना कि you can file a complaint if you are denied admission in some private school. Can you explain the process once again along with the website name where we can file the complaint? And can we do this for any specific school? For example, एक एरिया में कोई specific school है वो private है और मुझे उसी स्कूल में एडमिशन चाहिए अपने बच्चे का, तो कैन आई फाइल कंप्लेंट अकॉर्डिंगली along the name and request that I need to get admitted my child in that specific school? Prateek, great question. I'll just like to clarify कि आप specific school के against complaint file नहीं कर सकते, because जो portal है जिसमें आप register करेंगे वो आपको automatically school assign करेगा. So you can't choose कि मुझे यही वाली school जो मेरा भाई भी जाता है स्कूल में, मुझे इसी स्कूल में एडमिशन चाहिए. That is not something you can demand. All you can say is that कि मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, ये मेरा राइट है. I will the portal, as we said, we'll share that with you on email, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग पोर्टल होते हैं. जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का EduDel पोर्टल है जिसपे आप जा सकते हैं and you can get registered. दिल्ली में वो फरवरी में खुलता है और उसके ऑलमोस्ट 1 month का टाइम मिलता है आपको वो रजिस्टर करने के लिए उस पोर्टल में, and then automatically a private school is assigned to you. Other than that, what you said about this R12 RTE का section 12, just one thing to remember is that your आपको admission कोई भी deny नहीं कर सकता है. अगर आपको 12(1)(c) के अंदर आप एडमिशन चाहिए पोर्टल से, या फिर डायरेक्टली आप स्कूल के पास जाके एडमिशन मांग रहे हैं, कोई स्कूल आपको एडमिशन डिनाई नहीं कर सकता है. ओनली थिंग इज दैट अगर आपको फ्री एडमिशन चाहिए तो आपको अगर फ्री एजुकेशन चाहिए, देन यू हैव टू गो अंडर दिस पोर्टल. One last question, Smita, if we can take from Ashutosh, he's been waiting. Yeah, मैम please. ये स्कूल वाला अच्छा करवाया और आप प्लीज इसको हायर एजुकेशन पे भी करवाइएगा. मेरे 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक क्या कहते हैं, SCPD और CCPD की पावर तो रिकमेंडेटरी मैंडेटरी नहीं है क्या? जो SCPR जो भी है वो RTE के अंदर उसकी रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी है पावर? सेकंड क्वेश्चन, जो कलेक्ट फॉर ऑल है या कुछ आपने ऐसे बोला था RPWD एक्ट 2016 के में एजुकेशन के लिए, वो सभी पे एप्लीकेबल है या सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर एप्लीकेबल है? सॉरी, सेकंड क्वेश्चन में आप किस बारे में पूछ रहे थे? जैसे आपने बताया था कि अगर कुछ लॉ के अंदर नहीं लिखा है तो उसको अगर रीजनेबल अकोमोडेशन चाहिए उसके बावजूद भी वो हम ले सकते हैं. ओके, गॉट इट. Swami, you want to answer the first one? जैसे कि आपने बोला SCPD और CCPD के रिकमेंडेटरी पावर्स होते हैं, पर उसके बाद लेकिन जब वो एक बार अपना रिकमेंडेशन दे देते हैं तो जो भी अपोजिंग पार्टी है उसको लिखित में देना पड़ता है कि वो क्यों रिकमेंडेशन नहीं मान रहे हैं या क्यों मान रहे हैं. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे एक केस था कि दिल्ली में स्कूल्स में वॉशरूम, एक्सेसिबल वॉशरूम में ताला लगा हुआ था और एक्सेसिबल नहीं थे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए. जब स्कूल को बोला तो फिर स्कूल ने एक्शन लिया, स्कूल ने फिर उन वॉशरूम्स को एक्सेसिबल बनाया. तो इसके अलावा जो NCPCR, DCPCR जो स्टेट PCR होते हैं, इनका पूरा जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में इसका पूरा मैकेनिज्म दिया गया है कि वो क्या क्या
डिफरेंट एक्शंस ले सकते हैं। वो स्कूल को डायरेक्ट करते हैं, तो वैसे आमतौर पर स्कूल्स उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं, उनकी अगर कोई कंप्लेन आती है तो वो अकोमोडेट कर देते हैं। पर अगर नहीं होता है रिजॉल्व, तो उनके पास ये पावर है कि वो आपका केस लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी, या रिट मतलब पिटिशन आपके कंप्लेंट को लेके फाइल कर सकते हैं। Yes, and on your question about कि reasonable accommodations कभी कभी application applicable है, तो yes you are right कि आप सिर्फ आपके inclusive education के rights demand कर सकते हैं under reasonable accommodation। तो या आप अगर चाहे प्राइवेट स्कूल में हो या गवर्नमेंट स्कूल में हो, अगर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं मिल रही है वहां पे, देन यू कैन डिमांड दैट एज अ रीजनेबल अकोमोडेशन फ्रॉम द स्कूल। We would have loved to take all of the other questions as well, but I think we are running out of time. So we'll quickly wrap this up. Maybe हम जो email आपको भेजेंगे with all of the useful links, those will answer a lot of your questions. We hope so. If not, please feel free to write us an email and ask your questions to us as well. We would also again like to thank Umeed for giving us this opportunity कि हम आप सबके साथ interact कर पाए, हम आप सबसे बात कर पाए. We had a great time and it was a very interactive audience. We've never had so many questions from the audience before. So thank you so much everyone for participating so wholeheartedly. And thank you Smita for having us here. Yes, so thank you, Sagarika and Soumya, both of you. It was a very informative session. बहुत कुछ जानकारी आपने दी, और एज अ पेरेंट, मैं जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर, उनको बस यही कहना चाहूंगी कि जितनी हमारी नॉलेज बढ़ेगी, उतना ही हम कॉन्फिडेंटली स्कूल्स के साथ डील कर पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमको जाके लड़ना है, पर अगर वो देखें कि हमको भी जानकारी है अबाउट आवर चिल्ड्रंस राइट्स, तो वो भी शायद अपना रवैया बदल सकते हैं। तो ये एक पहला कदम है। ऐसे ऐसे सेशंस आप जितना आपको अपॉर्चुनिटी मिले, प्लीज अटेंड करिए। नॉलेज इज पावर। तो उसी के साथ वील रैप दिस अप। थैंक यू वेरी मच सागरिका, सौम्या, थैंक्स टू द विधि टीम फॉर giving us your time and all that you shared.